Hello students, here we are studying the chapter 16 which is stars and the solar system of class 8 science. So today we are going to discuss about the planets, the 8 planets that we have in our solar system, and yesterday we had discussed about the solar system and our universe. So let's see what is there. So as you know, in our solar system we have 8 planets, that is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So one by one we will see these planets and we will find out what are the different kind of facts they show. So let's start. The first planet we will study, and that is Mercury, which is the closest planet to the sun. As you can see here in this picture, the Mercury is the first planet which is very near to the sun. So this is the closest planet in our solar system, and as you can see, it is very small in size. So you can say that this is the smallest planet in our solar system. Let's find out what is another thing. So it is said that Mercury is the closest to the sun. Means it is the first planet in our solar system, and it is very close to the sun, and it is the smallest planet in our solar system. As I said, this is the smallest in size in all the planets. Now it shows phases like the moon as it lies inside the earth's orbit. It also shows the phases of the moon because it is present inside the earth orbit, so we can see the phase of the Mercury just like we see the phases of the moon. Now during the day, daytime, the temperature on Mercury reaches 400 degrees Celsius. But at night the temperature drop up to minus 200 degrees Celsius, and no life can exist on the planet Mercury. What is being said? It is said that during daytime, the temperature on Mercury becomes 400 degrees Celsius. So hot. Now, and during the night the temperature drops. The temperature falls up to minus 200 degrees Celsius. So you can imagine how hot the day of the Mercury and how cold the night of the Mercury, because it doesn't have the atmosphere. So because of the absence of the atmosphere, the Mercury has this kind of fluctuation in the temperature. Now, it is a very dry planet. It is said that it is a very dry planet as it experiences no rain at all. Mercury पे बारिश नहीं होती है. There is no rain. Its surface is covered with deep holes known as craters. इसके surface पे बहुत बड़े गड्ढे होते हैं, holes होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? craters बोलते हैं. And it doesn't have any atmosphere. इसके पास अपना atmosphere भी नहीं होता है. जैसे कि आप जानते हो on our earth इसके चारों ओर क्या है? एयर की एक ब्लैंकेट है. There is a blanket of air, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम atmosphere बोलते हैं. We call it atmosphere. The layer of the air, okay, the blanket of air around the earth, and that is called atmosphere. ऐसा कुछ मरकरी के पास नहीं होता है. Just a few traces of sodium vapor are found because all the gases are destroyed by the sun. इसके पास कुछ सिर्फ सोडियम की कुछ वेपर्स होते हैं. ठीक है, सोडियम जो है वो गैसुअस फॉर्म में कुछ मिलता है, वो भी बहुत ही कम, फ्यू ट्रेसेस, बहुत ही ज़्यादा कम. ठीक है, एंड ऐसा क्यों है? क्यों वहाँ पे कोई गैसेस नहीं है? क्योंकि सारी गैसेस जो हैं वो सन के द्वारा क्या हो गई हैं? डिस्ट्रॉय हो गई हैं. क्योंकि मरकरी जो है वो क्या है? क्लोजेस्ट टू द सन, सन से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है. तो ड्यू टू द हीट ऑफ द सन ऑल द गैसेज आर डिस्ट्रॉयड. Now it has the longest day.
आप जानते हो डे एंड नाइट कैसे होता है, ड्यू टू द रोटेशन, ड्यू टू द रोटेशन। आपको पता है कि प्लैनेट्स जो है वो दो तरीके की मूवमेंट शो करते हैं, एक जो अपनी एक्सिस पे मूव करते हैं, दे मूव ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, जस्ट लाइक द टॉप, जैसे लट्टू अपनी एक्सिस पे घूमता है वैसे ही प्लैनेट्स भी अपनी एक्सिस पर क्या करते हैं, मूव करते हैं। और ये एक और मूवमेंट शो करते हैं कि ये सन के चारों ओर रिवोल्यूट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन। Okay, so the planets show two type of movement, rotation and revolution. अपनी एक्सिस पे मूव करना मीन्स रोटेशन, एंड सन के चारों ओर मूव करना, सन का चक्कर लगाना, उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। तो रोटेशन से क्या होता है, डे एंड नाइट, एंड रिवोल्यूशन से क्या होता है कि कंप्लीट जो है वो जो सीजन्स, रिवोल्यूशन से जो है वो सीजन्स बनते हैं, और रिवोल्यूशन से आप ये बताते हो कि ईयर, ठीक है, एक रिवोल्यूशन को आप क्या बोलते हो, 1 ईयर बोलते हो। तो यहाँ पे देखिए लॉन्गेस्ट डे है, मतलब ये हुआ कि मरकरी जो है वो बहुत धीरे धीरे अपनी एक्सिस पे बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर अर्थ के हिसाब से देखा जाए तो ये कितना दिन लेता है एक दिन पूरा करने में, 58 अर्थ डेज, इट टेक्स 58, मतलब कि जब हमारी दुनिया में 58 दिन 58 डेज ख़त्म होंगे तो मरकरी पे एक दिन फिनिश होगा, ठीक है। एंड इसका ईयर जो होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट, मतलब एक ईयर कितने दिन का होता है, 88 अर्थ डेज का होता है, ठीक है। 88 अर्थ डेज में ही ये सन का एक चक्कर जो है वो कंप्लीट कर लेता है। नाउ इट डजेंट हैव इट्स ओन सैटेलाइट, इसके पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती है, ठीक है। आप जानते हो कि प्लैनेट के चारों ओर जो सेलेस्टियल बॉडी मूव करती है उसको आप क्या बोलते हो, सैटेलाइट, यू से सैटेलाइट। तो मरकरी के पास कोई अपना नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। मरकरी कैन बी सीन जस्ट आफ्टर द सनसेट इन द वेस्ट एज एन इवनिंग स्टार, और जस्ट बिफोर द सनराइज इन द ईस्ट एज मॉर्निंग स्टार। अगर आपको मरकरी को अर्थ से देखना है तो आप कब देखोगे, सनसेट, ठीक है। सनसेट के वक्त किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में एज एन इवनिंग स्टार, आपको स्टार की तरह चमकता हुआ शाम में दिखाई देगा, ठीक है। और इसको आप और भी कब देख सकते हो, जस्ट बिफोर द सनराइज, सूरज के राइज होने से पहले आप इसको ईस्ट डायरेक्शन में एज अ मॉर्निंग स्टार देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मरकरी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड दैट इज वेनस। सो वेनस इज द सेकेंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। हमारे सोलर सिस्टम में सन के सबसे पास कौन है, मरकरी, उसके बाद कौन सा प्लैनेट है, वेनस, ठीक है, सेकेंड प्लैनेट इसको हम बोलते हैं। इट इज़ ऑफन कॉल्ड एज अर्थ ट्विन और सिस्टर प्लैनेट, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ की जुड़वा बहन बोलते हैं, अर्थ ट्विन या सिस्टर प्लैनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज टू प्लैनेट्स आर सिमिलर इन सम वेज लाइक एयर प्रेजेंट ऑन बोथ द प्लैनेट्स हैव सम ऑफ द सेम गैसेस, क्योंकि कुछ कैरेक्टर जो हैं वो अर्थ और वीनस के मैच करते हैं, इसीलिए हम इनको अर्थ ट्विन कहते हैं, ठीक है। हमारे अर्थ पे जैसे एटमॉस्फेयर है, एयर है, वैसे ही वीनस पे भी एयर है, ठीक है, वीनस ऑल्सो हैज़ एयर। और कुछ गैसेस जो हैं वो जैसे अर्थ पे कुछ गैसेस हैं जो कि सिमिलर टू द गैसेस विच आर फाउंड इन द एयर ऑफ वीनस, तो इसीलिए हम इसको अर्थ ट्विन बोलते हैं। नाउ वेनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, ओके, वेनस जो है वो क्या, हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है, ठीक है। इट इज़ सेड दैट मरकरी जो है वो सन से सबसे करीब है, तो मरकरी को हॉटेस्ट प्लैनेट होना चाहिए, लेकिन वेनस क्यों हॉटेस्ट प्लैनेट है, इसलिए क्योंकि उसके पास क्या है, एटमॉस्फेयर, उसके पास क्या है, एयर। तो वेनस के पास एयर है, तो जब सन से हीट यहाँ पे आता है तो जो ये एटमॉस्फेयर है, दिस एटमॉस्फेयर कैप्चर्स द सन हीट ऑफ द सन, इट कैप्चर्स
the heat of the sun, and because of that the temperature of this planet becomes very high. ठीक है, ये जो एटमॉस्फेयर है वीनस के चारों ओर, वो सन से आने वाली हीट को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, और जिससे कि इसके सरफेस को बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है. द सरफेस टेम्परेचर ऑफ दिस प्लानट इज अबाउट 465 डिग्री सेल्सियस. कितना टेम्परेचर होता है, 465 डिग्री सेल्सियस. सो मच, इट इज़ सो मच, इट इज़ टू मच. नाउ ये इतना टेम्परेचर जो है वो सफिशिएंट है टू मेल्ट अ मेटल. ये किसी मेटल को क्या कर सकता है, मेल्ट कर सकता है. ठीक है, पिघला सकता है, जस्ट लाइक आयरन को, कॉपर को. ठीक है, ये इतना ज़्यादा हीट, इतना ज़्यादा टेम्परेचर किसी भी मेटल को क्या कर सकता है, मेल्ट कर सकता है, पिघला सकता है. नाउ इट अपीयर्स अ वेरी ब्राइट बिकॉज इट्स क्लाउडी एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट 75% ऑफ द लाइट विच इट रिसीव्स फ्रॉम द सन. ये बहुत ही ब्राइट दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है. क्यों दिखाई देता है चमकता हुआ, क्योंकि इसकी एटमॉस्फेयर कैसा है, क्लाउडी है. जो ये क्लाउडी एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, जो भी रेज, सन की जो लाइट रेज हैं वो इसके ऊपर पड़ती हैं, तो उसका 75% ये क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट करता है. और ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट इट अपीयर्स वेरी वेरी ब्राइट. बहुत चमकता हुआ दिखाई देता है ये अर्थ से. नाउ वीनस हैज़ नो वाटर. वीनस के पास पानी नहीं है, इट हैज़ नो वाटर, बट इट इज़ कवर्ड विथ थिक डेंस क्लाउड्स ऑल अराउंड इट. लेकिन ये चारों तरफ से क्या है, डेंस, घने बादलों से ढका हुआ है. ठीक है, दीज क्लाउड्स एक्ट एज अ ब्लैंकेट एंड ट्रैप सन्स हीट. ये क्लाउड क्या करते हैं, सन की हीट को कैप्चर कर लेते हैं. ठीक है, एंड मेकिंग द टेम्परेचर हाई ऑल द टाइम. जिससे कि वहाँ का टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है. नाउ वीनस इज़ नोन एज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार. वीनस को हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई जस्ट बिफोर द सनराइज. ठीक है, सूरज उगने से पहले, सनराइज से पहले ये ईस्ट डायरेक्शन में आसमान में ये हमको चमकता हुआ दिखाई देता है, जस्ट लाइक अ स्टार. ठीक है, अभी आपने पढ़ा ना कि ये क्या होता है, इट अपीयर्स वेरी ब्राइट, चमकता है. तो ये सनराइज से पहले, सूरज उगने से पहले ये आपको ईस्ट डायरेक्शन में क्या है, एज अ स्टार आपको चमकता हुआ दिखाई देगा. तो इसलिए हम इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं कि सुबह सुबह का तारा है ये. ठीक है, और ड्यूरिंग आफ्टर द सनसेट, सूरज छुपने के बाद, ठीक है, सनसेट होने के बाद ये आपको वेस्ट डायरेक्शन में चमकता हुआ दिखाई देगा. तो हम इसको इवनिंग स्टार भी बोलते हैं. ठीक है तो ये प्लैनेट, लेकिन क्योंकि ये शाइन करता है बिफोर द सनराइज एंड आफ्टर द सनसेट, तो इसलिए हम इसको मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार बोलते हैं. इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वेयर एज अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. आपको पता है कि कोई भी प्लैनेट अपनी एक्सिस पे मूव कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ प्लैनेट होता है कि वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूम रहा है कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ. तो देखिए जो वेनस है वो ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होता है, ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है, लेकिन हमारा अर्थ जो है वो कैसे मूव कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, तो दोनों का जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो क्या है, अपोजिट है. तो जब क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो हमें सनराइज जो है वो ईस्ट में दिखाई देता है और सनसेट जो है वो वेस्ट में दिखाई देता है. लेकिन इन केस ऑफ वीनस अपोजिट है. तो अगर आप वीनस पे जाओगे तो आपको सनराइज जो है वो आपको वेस्ट में दिखाई देगा और सनसेट जो है वो ईस्ट में दिखाई देगा, जस्ट अपोजिट. ठीक है, तो जैसे आप कहते हो ना कि आज सूरज कैसे पश्चिम से निकल गया, तो इट विल बिकम ट्रू, ये सही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा अगर आप वीनस पे जाते हो, क्योंकि सूरज वहाँ पे पश्चिम से निकलता है और डूबता पूरब में है. लेकिन हमारे अर्थ पे क्या होता है, सूरज पूरब से निकलता है और डूबता पश्चिम में है, क्योंकि रोटेशन की डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट. नाउ वीनस डिमॉन्स्ट्रेट द फेजेस जस्ट एज मून शोज इट्स फेजेस. जैसे हम दुनिया से, अपनी धरती से जो है
मून को देखते हैं तो मून के फेजेस दिखाई देते हैं, कभी कंप्लीट मून दिखाई देता है, कभी क्रेसेंट मून दिखाई देता है, कभी हाफ मून दिखाई देता है ना। तो ऐसे ही हम क्या वीनस में भी क्या होते हैं, फेजेस होते हैं, ठीक है। और इट डजेंट हैव इट्स ओन सैटेलाइट, वीनस के पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई मून नहीं है, इट हैज़ नो नेचुरल मून, नेचुरल सैटेलाइट। एंड इट टेक्स 225 डेज टू गो अराउंड द सन। इसका एक साल जो है वो कितने दिन में कंप्लीट होता है, 225 डेज में, ठीक है। एंड इट हैज़ लॉन्गर डे दैन ईयर, ठीक है। इसका जो एक दिन होता है वो क्या है, साल से ज़्यादा बड़ा होता है। दिस इज़ वियर्ड बट दिस इज़ द ट्रू। नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर प्लैनेट ऑन विच वी लिव, दैट इज़ अर्थ, ठीक है। अब किसकी बारी है, अर्थ की, ऑन विच वी लिव, जिस पे हम रहते हैं। तो अर्थ जो हमारी दुनिया है वो हमारे सोलर सिस्टम का जो है वो थर्ड प्लैनेट है, ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है, पहले मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ। एंड is the only planet in the solar system which shows the presence of life as of now, ठीक है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ अकेला ऐसा प्लैनेट है जिसपे क्या है, लाइफ है, जिसपे आपको लाइफ मिलती है, जिसपे आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। दिस इज़ बिकॉज द अर्थ हैज़ द कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। ऐसा क्यों है, क्यों बाकी सारे प्लैनेट्स पे लाइफ नहीं है, जीवन नहीं है, सिर्फ दुनिया में ही है, अर्थ ही है? क्योंकि अर्थ हैज़ ऑल द नेसेसरी कंडीशंस, ऑल द फेवरेबल कंडीशंस विच इज़ फिट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। जो भी लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस है वो अर्थ पे सारी कंडीशंस मिलती हैं, बाकी सारे प्लैनेट पे वो कंडीशंस नहीं मिलती हैं। जैसे कि आपकी अर्थ पे क्या सूटेबल टेम्परेचर है, ठीक है, सूटेबल अमाउंट ऑफ लाइट मिलता है, एनफ अमाउंट ऑफ हीट मिलता है फ्रॉम द सन, ठीक है। वी हैव द एयर, हमारे पास एयर है, एटमॉस्फेयर है। वी हैव वाटर इन द लिक्विड फॉर्म, हमारे पास लिक्विड वाटर है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर ड्रिंकिंग, ओके। एंड वी हैव ऑक्सीजन इन एनफ अमाउंट टू इनहेल एंड टू सर्वाइव। तो एंड lots of things we have, and because of these favorable conditions life is possible on the earth. Now it is also known as blue planet. आपको पता है इसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज अर्थ अपीयर्स ब्लू ग्रीन ओइंग टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द वाटर एंड ग्रीन वेजिटेशन। क्योंकि जब आप स्पेस से दुनिया को देखते हो तो आपको ये ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देता है। क्यों ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देता है? क्योंकि जो हमारे पास बहुत ज़्यादा जो वाटर है प्रेजेंट इन द ओशन एंड इन द सी, जो सी वाटर, ओशन वाटर, आपको पता है 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। तो ये जो बहुत ज़्यादा पानी जो सरफेस वाटर हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है वो लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है इन अ ब्लू कलर, ठीक है। तो ब्लू कलर में हमको ऊपर से स्पेस से दिखाई देता है। और जो ग्रीन वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे हैं, वो ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हमको ये ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। नाउ इट इज़ अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम द सन, ठीक है। ये देखिए सन और अर्थ के बीच में इतनी दूरी होती है। And that's why we receive sufficient heat which doesn't make the planet too hot or too cold, ठीक है। हम सन से इतनी दूरी पे हैं कि ना तो हमारा प्लैनेट बहुत ज़्यादा हॉट है, ना ही बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठीक है। एनफ अमाउंट ऑफ लाइट और हीट मिलता है जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन रहता है और लाइफ कैन बी पॉसिबल हियर। नाउ it has one natural satellite of its own which revolves around the earth known as moon. इसके पास क्या है? हमारे अर्थ के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? मून बोलते हैं, जो कि अर्थ के चारों ओर क्या करता है? रिवॉल्व करता है, ठीक है। Now when the earth came into being 4.55 billion years ago, the hot cloud of gas and dust revolving around it gradually cooled down and pulled the droplets towards the earth by its gravity,
सो अर्थ हैज़ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू नरिश लाइफ फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, 4.55 बिलियन ईयर्स एगो जब दुनिया बन रही थी तब क्या हुआ कि जो हॉट क्लाउड एंड डस्ट थे वो हमारे प्लानट के चारों ओर क्या कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे। ठीक है, और जैसे जैसे हमारी जो और उस टाइम जो है वो हमारी अर्थ जो थी वो बहुत ज़्यादा हॉट थी, इट वॉज सो हॉट। ठीक है, तो जब वो धीरे धीरे क्या होती गई, समय के साथ साथ वो कूल होती गई, और कूल होते होते क्या हुआ कि जो उसके चारों ओर जो अर्थ गैसेस और डस्ट रिवॉल्व कर रहे थे वो उसको क्या कर रही थी, अपनी ओर पुल कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी ड्यू टू द ग्रेविटी। अपनी ग्रेविटी, आपको पता है अर्थ के पास उसके पास उसकी अपनी ग्रेविटी है। ठीक है, इट हैज़ द फोर्स टू अट्रैक्ट एवरीथिंग। ठीक है, तो वो उसके अर्थ के चारों ओर जो भी गैसेस और डस्ट मूव कर रहे थे तो अर्थ अपनी ग्रेविटी से उसको क्या की, अपनी ओर अट्रैक्ट कर ली, तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया। ठीक है, तो वो जो भी गैसेस थी लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एंड वाटर, वो सारी चीज़ें हमारे अर्थ में आ गई, अर्थ के सरफेस पे आ गई एज अ एटमॉस्फेयर। ठीक है, और ये सारी चीज़ें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ अर्थ ट्रेवल्स इन 2 डिफरेंट वेज। आपको पता है कि अर्थ जो 2 तरीके से ट्रेवल करता है, मूव करता है। एक तो इट स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस पे मूव करता है, एंड कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन 24 आवर्स। और एक रोटेशन जो अपनी एक्सिस पे जो 1 रोटेशन है वो कितने समय में कंप्लीट करता है, 24 आवर्स में। ठीक है, विच इज़ नोन एज प्लानिटरी डे ऑफ द अर्थ, जिसको हम एक दिन बोलते हैं। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और साथ साथ हमारी दुनिया जो है वो सन का भी रिवॉल्यूशन कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो ये जो ट्रैवलिंग है ये कंप्लीट करता है 365.24 डेज। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 ईयर बोलते हैं। नाउ द स्पिनिंग मोशन ऑफ द अर्थ due to rotation facilitates the air to move, which in turn causes clouds to move from one place to another. This rotation causes day and night. इस रोटेशन से ही क्या होता है, डे एंड नाइट होता है, दिन और रात होती है। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए आपका सन है। ठीक है, सन से हमें लाइट मिलती है तभी दिन होता है, और यहाँ पे अर्थ है। ठीक, तो जो पोर्शन सन के क्या होता है, सामने होता है, वहाँ पे होती है लाइट पड़ती है, और उस जगह पे आपको क्या मिलता है, डे। और जो पोर्शन जो होता है वो अर्थ जो सन के अपोजिट होता है, दूसरी तरफ होता है, वहाँ पे सन रेज नहीं पड़ पाती है, तो वहाँ पे उस समय क्या होता है, नाइट होता है। तो क्योंकि अर्थ जो है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, इट इज़ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, तो ये घूमते घूमते क्या होगा, धीरे धीरे करके ये वाला जो पार्ट है वो इधर आ जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है वो पीछे चला जाएगा। तो फिर तो ये वाला पार्ट यहाँ आ गया, तो फिर यहाँ पे दिन हो जाएगा, और जो ये वाला पार्ट घूमकर यहाँ चला गया तो यहाँ पर रात हो जाएगी। तो 24 आवर्स में ये कंप्लीट करता है। तो 24 आवर में आपको एक हाफ पोर्शन पे आपको दिन दिखाई देगा और हाफ पे नाइट। फिर 12 घंटे के बाद जब ये इधर वाला पोर्शन इधर आ जाएगा तो यहाँ पे दिन हो जाएगा और इधर रात हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस रोटेशन की वजह से ही दिन और रात होता है। और इस रोटेशन की वजह से देखिए क्या होता है कि एयर जो है हमारे अर्थ के चारों ओर जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, वो भी क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, और जो एयर मूव करती है तो उस एटमॉस्फेयर में जो क्लाउड्स हैं वो भी क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और जिससे हमारा सीज़न जो है, पैटर्न जो है वो बनता रहता है। नाउ द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन विच मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। आपको पता है कि जो हमारी दुनिया है, अर्थ है, वो सन के चारों ओर क्या करती है, इट मूव्स अराउंड द सन। तो जब ये सन के चारों ओर मूव करती है तो जो, क्योंकि ये अपनी एक्सिस पे थोड़ी सी टिल्ट है, तो जो सन रेज हैं और जो आपका ऑर्बिट है, द ऑर्बिट जिसके ऊपर जो है वो अर्थ मूव करी, वो भी क्या है, ओवल नहीं, सॉरी राउंडेड नहीं, इट इज़ नॉट राउंडेड। ठीक है, ये जो सन है, ठीक है, और यहाँ पे अर्थ है, और ये अपनी ऑर्बिट में ये इसके चारों ओर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जो डिस्टेंस, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। कभी इस अर्थ जो है वो सन के थोड़ा करीब आ जाती है, कभी दूर हो जाता है, क्योंकि जो उसका पाथ है, जो ऑर्बिट है, वो हर जगह बराबर नहीं है, इट इज़ ओवल। ठीक है,
तो ओवल होने की वजह से लाइक दिस यू कैन अंडरस्टैंड, जैसे ये सन है तो अगर ये उसका अर्थ का जो पाथ है वो क्या होता, राउंडेड होता, तो हर जगह जस हमारी दुनिया कहीं भी होती तो डिस्टेंस क्या होता, सेम होता, तो सेम अमाउंट ऑफ लाइट अर्थ पे पड़ती। लेकिन क्योंकि जो ये क्योंकि जो ये पाथ है वो क्या है, थोड़ा सा ऐसे ओवल है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे अर्थ मूव कर रहा है तो इस जगह पे देखिए डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे जब अर्थ हमारी घूमते घूमते यहाँ से यहाँ आएगी तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब यहाँ दूर होगा तो हीट जो होगा, जो सन रेज होगा वो कम पड़ेगा। जब ये करीब आ जाएगी सन के थोड़ा, तो यहाँ पे सन रेज जो है वो ज़्यादा पड़ेंगी, ज़्यादा अमाउंट पड़ेंगी। तो यहाँ पे जब अर्थ होगी तो यहाँ पे विंटर, ठीक है, ठंडक पड़ेगी क्योंकि सनलाइट सन हीट जो है वो कम पड़ रही है, ठीक है। और इस जगह आने पे क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में हीट पड़ेगा, हीट रेस पड़ेंगी, तो यहाँ पे समर हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी। तो रिवोल्यूशन की वजह से जो है वो अर्थ पे क्या होता है, सीज़न बनते हैं, सीज़न मौसम बनते हैं, और इस मौसम की वजह से ही जो है हमारी लाइफ जो है एग्जिस्ट कर सकती है ऑन द अर्थ। नाउ वाई डू वी हैव अ लीप ईयर आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, ठीक है। आपको पता है कि हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर होता है, ठीक है। तो लीप ईयर क्यों होता है, देखिए एज वी नो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 365.24 डेज और 365 1/4 days. So each year is taken as 365 days, once in a 4 years. One more day is added, 363 days. So once in 4 years, February has 29 days. ठीक है, आपको ये कंप्लीट परफेक्ट 365 डेज नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा है 0.24। तो हम सारे सालों में क्या करते हैं, सारे ईयर्स में 365 डेज लेते हैं, 4 साल के बाद एक दिन, ये जो 0.24 डेज है वो क्या हो गया, 1 डे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो 1 डे हम किस में ऐड कर देते हैं, फरवरी में ऐड कर देते हैं, ठीक है, फरवरी में ऐड कर देते हैं। तो फरवरी लीप ईयर में कितने दिन की हो जाती है, 29 डेज की हो जाती है। सो नाउ इन दिस वीडियो यहीं तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। मरकरी, वीनस एंड अर्थ हमने डिस्कस कर लिया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द अनदर planets. So this is all about for this video. Thank you.